اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ دیکھیں گے نا ان کی تاریخ عجیب و غریب ہے. سکندر تو خیر اس کو چھوڑیے، شاہ نامہ ہے. کس کا شاہ نامہ؟ فردوسی کا. فردوسی جو ہے مسلمان ہوا، یقیناً مسلمان ہو گیا، لیکن فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا ہے نا اس میں جگہ عربوں پر، چونکہ اس کو نفرت تھی عربوں سے، ایسی سی باتیں لکھ دی ہیں اس نے کہ پوچھیے مت. تو معلوم یہ ہوا تنگ نظری، اپنے آپ کو سب سے اونچی قوم سمجھتے تھے ایرانی لوگ. ان کے دربار میں جا کر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد سب ہو. اور پھر کہا اور کیا ہے؟ کہا کہ ایک ہی ماں، سگے بھائی بہن، تم سگے ہو، ایک ماں باپ سگے ہیں، یعنی سارے انسان سگے بھائی ہیں. من ابن و امن. اچھا صاحب، تو یہ رستم علی تو بڑی اچھی باتیں ہیں. پھر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صاحب، وہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تقریر کی انہوں نے کہ رستم سنو، ہم لوگ جو ہے جاہل تھے، یہ کرتے تھے سب، پوری جہالت کا نقشہ کھینچا. پھر ابتعثنا اللہ نے ہمیں مبعوث کیا، بھیجا. ہم دنیا میں اس لیے لنخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ ہم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لائیں. یہ روشنی اور کیا، اور اس لیے بھیجا کہ ہم لوگوں کو من جور الادیان الى عدل اسلام، تاکہ ہم جتنے دین اس دنیا میں ہیں ان کی ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے عدل کی جانب لائیں. اور کس لیے ہم آئے؟ اس لیے ہم آئے کہ من ضیق الدنیا الی سعتھا، ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر انسان کو دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں. اسلام کس کا درس دیتا ہے؟ کشادگی کا، وسط کا دیتا ہے. کالا بھی ہمارا بھائی ہے، گورا بھی ہمارا بھائی ہے، دنیا کسی خطے کا ہو، اسلام لے آئے ہمارا بھائی ہو. یہ ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ شرح صدر نہ ہو. توحید کی امانت جب داخل ہو جاتی ہے، ایک خدا پر ایمان جب ہو جاتا ہے، تو انسان جو ہے، انسان کیا ہے، اس میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور ساری انسانیت کا درد اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے شرح صدر کا مطلب. وہی کہہ رہا ہے فمن یرید ان یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضل یجعل صدرہ ضیقا حرجا. کیونکہ رنگ کا بت بیٹھا ہوا ہے، نسل کا بت بیٹھا ہوا ہے، زبان کا بت بیٹھا ہوا ہے، کسی ملک کا بت بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ اس کو تنگی میں وہ سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ پہ کوئی چڑھے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے. بھائی ہم جو ہے بلال کو بھائی بنانا آسان کام تھا اس زمانے میں، بتائیے، آسان کام ہے یہ، سانس پھولنے لگتا تھا. تو یسر کانما یسادو، گویا کہ بلندیوں پہ چڑھ رہے ہیں، بلندیوں پہ چڑھتے سانس پھولنے لگتا ہے. تو یہ اسلام کی جو تعلیم ہے، وسعت کی، کشادگی کی، کسی کے بس کی بات نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کانوا یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرسل الذین لا یؤمنون. ہاں صاحب، الیاس صاحب، مربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. جی وہ آیا سورہ زمر میں ہے وہ. جی اس کا بھی مفہوم یہی ہے، علی نور من ربہ، نور ہے، نور روشنی ہے. ادھر تاریکی ہے. تاریکی کس کی تاریکی؟ رنگ، نس، زبان اور خاندان، قبیلے کے غرور کی تاریکی ہے. یہ سب غرور کی تاریکیاں ہیں. اور ایک طرف کیا ہے؟ توحید. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوئے جسے اللہ چاہتا ہے، یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے بھائی، جسے چاہتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ سنت بتاتی ہے. ہم بار بار کریں سنت اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ بتایا نا، اس کی سنت اندھی بہری نہیں ہے. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جو راستہ چاہتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے، البتہ زبردستی کسی کو راستے پر نہیں چلاتا. ہاں بس یہ بات ہے، زبردستی نہیں چلاتا. جیسا کہ پیچھے ہم نے بتایا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے. چلیے، قد فصلنا الآیات، ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی شرح صدر کی بات ہو رہی تھی. آپ یہ سمجھیے، جبلہ ابن ایہم کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شاید پہلے بھی ہم نے بتایا ہو. جبلہ ابن ایہم ایمان لاتا ہے. جی وہ بادشاہ تھا نا کسی خطے کا، رومیوں
की तरफ से बादशाह जो मुक़र्रर किया गया था। तो जब आता है, हज़रत उमर का ज़माना है, तवाफ़ कर रहा था, एक बदू का पैर पड़ गया उसके उस एहराम पर, और फिर देखा कि बदू चाटा लगा दिया, ज़ोर से चाटा लगाया। अब बदू ने फ़ौरन पकड़ा और फरियाद की किसी हज़रत उमर से। उमर ने कहा क़िसास लिया जाएगा। कहा गया क़िसास लिया जाएगा। बस अब ये जो है, अब जाहिर है अभी इसके दिल में तंगी है ना, तंगी थी। उसने कहा कि अच्छा कल ठीक है कल। और उसके भाग गया। क्यों भागा क्यों? शुजा साहब भागा क्यों? अभी वो तंगी थी दिल में, अभी दिल में तंगी थी, अभी एक को अपनाने का हौसला नहीं था। मनुतू का इम्तियाज़ जो होता है ना, वो कायम था। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम मनुतू के इम्तियाज़ का ख़ात्मा करता है। एक ही सफ में खड़े हो गए, न कोई बंदा रहा और न कोई, ये है असल में इस्लाम की तालीम। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए सलाम का घर है। सलाम माने सलामती, हर तरफ सलामती, हर तरफ से सलामती, सलाम। चलिए, वह वलियुहुम बिमा कानू यामलून, वो यानी अल्लाह ताला उनका साथी होगा। क्यों? ऐसे ही नहीं, बिमा कानू यामलून, उनके अमल की वजह से साथी होगा, बेअमली की वजह से नहीं। चलिए, जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, इस रोज़ वो जिनों से खिताब करके फरमाएगा कि ऐ गुरोए जिन, तुमने तो नूह इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया, और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा, बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। बस अब देखिए, क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। क़यामत के दिन जब सब होंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। यह इंसानों के सिलसिले में ये है कि उनके इंसानों के जो इंस रब नस्तम तो बाज़ नबा, ए रब, हम सब ने, यानी हम जिन्हों ने हमसे फ़ायदा उठाया और हमने जिन्हें से फ़ायदा उठाया है, और तेरा रास्ता था, हकीकी रास्ता, उससे हम फिर गए। अपना कसूर वो मान लेंगे उस दिन, लेकिन उस वक्त कसूर के एतराफ़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कह रहे हैं वो बलगना अजलतना आलन्नार मसवाकुम खालिदीन फीहा, उस दिन एतराफ़ कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा सबका ठिकाना जहन्नम इल्ला माशा अल्लाह। फिर आ गया, देखिए, कहा था कि जहन्नम में ठिकाना इल्ला माशा अल्लाह। क्या तर्जुमा किया? जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा, बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। जिन्हें बचाएगा, ये सब मुश्किल हैं भाई। जिन में से और इंसान में जो भी एक दूसरे फ़ायदा खुद उठाया है ना, शैतान ने बहकाया, वो भाग गए। तो फिर इल्ला माशा अल्लाह, वो जहन्नम में जाएंगे। इल्ला माशा अल्लाह मतलब जिसको चाहे, किसी शैतान बचाएगा वो, यही इसी में इल्ला माशा अल्लाह, यानी मस्जिद किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ अल्लाह की मशीयत चलेगी। उसकी मशीयत यही है कि ये जहन्नम के ईंधन बनते रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बात इसको पहले समझ ली, बार इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह बार आ रहा है। देखिए, इस सब का मफहूम हम जगह का, इल्ला माशाअल्लाह मतलब ये है किसी की मशीयत नहीं चलेगी, मशीयत सिर्फ एक की चलेगी। किसकी? अल्लाह ताला की। अल्लाह की मशीयत यही है, जिन्होंने गुमराही को इख्तियार किया वो जहन्नम के ईंधन बने रहे, हमेशा रहेंगे उसमें, ये मतलब उसका है। और चलिए, वकज़ालिक नुवल्ली, देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। हम साथी उनको बनाएंगे, चूँकि इस दुनिया में साथ रहे हैं, जहन्नम में भी साथ रहेंगे। ये मौलाना का तर्जमा है। फिर मौलाना का तर्जमा पढ़िए तो, वकज़ालिक नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, इस तरह हम, देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। आप दा पढ़िए तो, वकज़ालिक नुवल्ली की तर्जमा, बेशक तेरा रब वली, और
उसी तरह हम मुसल्लत कर देते हैं जालिमों को एक दूसरे पर बसबब इनकी करतूतों की। बस बस मौलाना का तर्जमा और मुसल्लत कर देते हैं। मौलाना अमीन साहब का तर्जमा फ़र्क है कि एक तर्जमा हुआ। फिर पढ़िए तर्जमा ये। फर्क तो साथ करना और देखो इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे। ये तर्जमा मौलाना मौदूदी साहब का और मेरा ख्याल इन लोगों का भी तर्जमा होगा। आप पढ़िए तर्जमा क्या है? और इसी तरह हम साथ मिला देंगे साथ, ठीक है। और इनका क्या और भी कोई तर्जमा है? और इस तरह बना देंगे हम साथी जालिमों के एक दूसरे। बस ये देखिए, और बस के करीब रखेंगे। बात करीब 3 तर्जमे आए, 4 हो गए, सब एकसां है। इन तर्जमों के अलावा आमीन हसन साहब का तर्जमा है क्या? फिर तब पढ़िए, फिर पढ़ दीजिए। इसी तरह हम मुसल्लत कर देते हैं जालिमों को एक दूसरे पर बसबब उनकी करतूतों की। ये किसका तर्जमा बेहतर है? आप जानते हैं कि ये तर्जमे अलग अलग हो गए, एकसा नहीं है ना कि एकसा हैं, अलग हैं। किसका तर्जमा बेहतर है? किसका तर्जमा बेहतर है? मुसल्लत का ये गलत तर्जमा है। हाँ, बिल्कुल सही तर्जमा किसी तरह सही नहीं है। ये तर्जमा इन्हीं लोगों का सही है। समझ गए कि नहीं आप? हमारे मामू जान ने समझा कि वो इस्लाही हैं, हम भी इस्लाही हैं, लिहाजा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसकी नज़र रखते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं इस्लाही होने का। और ये बेचारे मौदूदी साहब जो है नहीं, इन लोगों ने जो है तर्जमे में काफ़ी मेहनत की है। एक अर्ज़ कर देता हूँ, जुमला मोतरज़ा है शुजा साहब, वहाँ मौदूदी साहब जितने तर्जमे हैं सब तर्जमे मेहनत की है, खूब जम के मेहनत की है। तर्जमे पे अगर मेहनत किसी नहीं की तो मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब है। अर्ज़ कर देता हूँ, मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब, इसको हदफ कर दीजिएगा भाई, इसमें बाद में इसको जो हमारा कमेंट है इसको हदफ कर दीजिएगा, खुदा के वास्ते इसको मत रहने दीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने मेहनत नहीं की उतनी, और क्यों? बुढ़ापा है, रहमानाबाद में है, कोई सा इनको सहूलत हासिल नहीं है। और वो शख्स ने लिखा है, गैर मामूली ये तफसीर लिखी है, लेकिन तर्जमे में जो मेहनत होना चाहिए था नहीं किया। तफसीर लाजवाब है, जो तशरीहात करते हैं ना वो लाजवाब है, लेकिन तर्जमा जो एहतियात होनी चाहिए थी नहीं। वल्लाहि वल्ली कहीं मुसल करना आता ही नहीं, कहीं मुसल करना नहीं आता। वल्लाहि वल्ली किससे निकला? वला यली से। वला यली माने अभी एक दिन बताया था, वला यली माने वली के माने वली माने करीब होना, वली माने करीब, यही नहीं होता है। वल्ला वली माने करीब करना, ये माना है। वल्ला वली के माने करीब करना। तो अल्लाह ताला कह रहा है वकज़ालिक नुवल्ली, बाज़ जालिमों को बाज़ से हम क्या कर देंगे? करीब कर देंगे। दुनिया में करीब रहे हैं, एक साथ रहे हैं जी, जुल्म जहालत सब साथ साथ शरीक रहे, दुनिया में हर बुराई में साथ रहे, तो आखिरत में भी जब बुराई का अंजाम भोगना तो साथ ही रहेंगे। यही अक्ल का तकाजा है। तो ये कह रहा है वकज़ालिक नुवल्ली, मुसल्लत करेंगे उन पर, मुसल्लत की बात ही नहीं हो सकती, वो कैसे बनेगी बात? तो ये हुई बात, वकज़ालिक नुवल्ली बाज़न बाज़न मा कानू यक्सिबून। हदीस में कमा तकुन्ना युला अलैकुम, और आला के साथ कमा तकुन्ना युला अलैकुम, कमा तकुन्ना युला अलैकुम, यानी होंगे और दूसरी तरह तुम्हारे जिम्मेदार और आमिर तुम्हारा होगा। वो ठीक है, वो होंगे ना। तो वली से वो युला अलैकुम, वली से माना रहा मुसल्लत नहीं, मुसल्लत करना जो है हाकिम के माने आते हैं यहाँ पे। हाँ, हाकिम के माने आते हैं, वली के माने युवल्ला अलैकुम, हाकिम के माने आते हैं। युवल्ला अलैकुम, तुम जैसे होगे वैसा ही हाकिम तुम पे बिठाया जाएगा। युवल्ला अलैकुम। तो अच्छा ये मतलब युवल्ला अलैकुम, तुमको तुम्हारा जो है गोया कि जिम्मेदार बनाया जाएगा। यहाँ वो जिम्मेदारी का मफहूम तो बन नहीं सकता है, ये बन ही नहीं सकता है ना। यहाँ जो है आप बता रहे हैं ये बन ही नहीं सकता है ये। चलिए अब आगे देखिए एक बात आ रही है, या माशरल जिन्न वल इंस। इस मौके पर अल्लाह इनसे ये भी पूछेगा कि ऐ गुरोए जिन व इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। अब देखिए साफ साफ आ गया, जब क़यामत होगी अल्लाह ताला पूछेगा क्या हमारा रसूल नहीं आया था जो पैगाम हक सुनाता, डराता? कहाँ आया था, डराता था, लेकिन हम मुज्जा कहते रहे कि मुज्जा लाओ,
تب ہم تمہاری بات مانیں گے. اور آج ہم کو یہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں ہم, تو اس دن یہ گواہی دیں گے ہم نے غلطی کی, رسول آیا تھا مگر اس کی بات ہم نے نہیں مانی تھی. لیکن اس دن یہ اعتراف کرنا, غلطی کا اظہار کرنا بے سود ہوگا, کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے. چلیے, ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. ذالک ترجمہ کیجئے. یہ شہادت ان سے اس لیے ہاں رک جائے ذرا سا حسن صاحب. رسول منکم یہاں پہ آپ رہیں گے, کیا جنوں میں سے بھی رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یا معشر الجن والانس. ایک اہم سوال کر دیا انہوں نے شجاع صاحب, بہت اہم سوال ہے. اب جا آئیں. ہاں دیجئے. جب جنہوں نے سنا تو یہ جنوں کی بھی رسول تھی, جنوں میں سے رسول نہیں بلکہ رسول کی بات کو جنہوں نے سنا, اس طرح کچھ اشارہ. ٹھیک. دیکھیے انہوں نے جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, اس میں علماء کے درمیان ذرا اختلاف ہے. تھوڑی وضاحت میں کر دیتا ہوں. علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں اسوہ و نمونہ ہوتے ہیں. انسان کا رسول جو ہوگا وہ جنوں کے لیے کیسے نمونہ بنے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جنوں کا کھانا الگ ہے, پینا الگ ہے, سونا الگ ہے, جی ہر چیز تو الگ ہے. یہ انسان خاکی مخلوق ہے, وہ نوری نہیں, ناری مخلوق ہے, فرشتے نوری. وہ ناری دونوں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ لہذا عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو ہے جنوں کے رسول الگ آنا چاہیے, کیونکہ ان کے احساسات, جذبات, خیالات سب الگ ہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں, جنوں اور انسان دونوں کا پیغمبر ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے, اور برکیف جدید علماء میں اختلاف ہے. اس وجہ سے ہم اس سے دو ٹوک بات نہیں کر سکتے, یعنی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے, ہے نا. اب دیکھیے یہ تو بات ہے نبی صلی اللہ, ہاں پھر ہمارے رسول کو رحمت للعالمین بولتے ہیں نا, پورے عالم تو جنوں کے جن بھی ایک عالم میں رہتے ہیں. عالمین سے مراد انسان ہے بھائی. عالمین سے مراد ابھی پڑھا نہیں, ذکر للعالمین تمام لوگوں کے لیے ہے نا, ذکر للعالمین ہے. اب یہ للعالمین اس میں بار بار, تو اس سے مراد کون ہے؟ انسان ہے, انسان. تو رحمت للعالمین سے مراد یہ تھوڑا نہیں کہ جو چونٹی کے لیے رحمت للعالمین ہے اور سورج کے لیے, چاند کے لیے, اس بات نہیں نا بھائی. تو انسان ہی مراد وہاں ہے. برکیف سورج جن میں ذکر ہوا ہے نا, سورج جن میں کیا ذکر ہوا ہے؟ انہوں چلتے ہوئے ایک جماعت نے سنا ہے. نبی گئے دعوت دینے, کیا ایسا قرآن مجید میں نہیں دیکھیے, وہ چلتے ہوئے سن لیا. قُلْ أُوحِيَ لِي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ, جنوں کے ایک گروہ نے سن لیا ہے. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, ہم نے عجیب و غریب قرآن مجید سنا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, جو ہدایت دیتا ہے, جو رہنمائی کرتا رشد کی, کامیابی کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں, يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ, ہم اس پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اللہ کی عظمت بہت بلند ہے. اور کیا ہے؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اس نے نہ کوئی بیوی کسی کو بنایا اور نہ بیٹا بنایا ہے. اور کیا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطْطًا, اور ہمارا سفی مانے بیوقوف نہیں, وَأَنَّهُ يَقُولُ سَفِيهٌ, ہمارا بیوقوف کہتا تھا. نہیں, سفی کے ماں جہاں بیوقوف کے وہیں لیڈر رہنما کے آتے ہیں, غیرت مند لیڈر. سفی ہمارا لیڈر, ہمارا امیر کہتا تھا کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, بڑی زیادتی کرتا. یقول سفیہ علی اللہ, اللہ پر ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا. اس طرح کی باتیں دیکھیے آئی ہوئی ہیں, لیکن اس سے کوئی واضح نہیں کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اور دوسری جگہ سورہ احقاف میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے بعد, معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایمان رکھتے تھے وہ, یعنی یہ کہا انہوں نے کہ موسیٰ کے بعد ایک کلام, یہی نہ ہے سورہ احقاف, موسیٰ کے بعد ہم نے یہ کلام سنا ہے.
तो गोया कि वो हज़रत मूसा जी क्या थी, तवील, हाँ बिल्कुल तवील उम्र होती थी। यही सब बातें हैं कि बढ़ के मुख्तसर ये मैं कर रहा हूँ कि हमारे उलमा का दो ग्रुप है। एक कहता है कि चूँकि जिन और इंस दोनों अलग अलग मखलूक हैं, तो इंसानों में से जो रसूल होगा जिनों की नफ्सियात के मुताबिक नहीं होगा, उनकी ख्वाहिशात अलग है, खाना पीना अलग है जी, वो पता नहीं क्या खाते हैं, कुछ पता ही नहीं किसी को, कुछ पता है कुछ नहीं, तो इस वजह से वो नमूना नहीं बन सकता उनके लिए। और रसूल क्या होता है, नमूना होता है। अब ये ऐसा है हसन साहब, अगर रसूल हमारे उनके लिए भेजे तो हम हमारी तालीम उनके लिए, हम पर फ़र्ज़ हो जाता हम भी जाएँ तबलीग करें। कैसे तबलीग करेंगे आप, तबलीग कैसे करेंगे आप दिनों में, सवाल है कि नहीं बोलिए। तो हम भी जब जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, हम इंसानों को हो जाएगी जिम्मेदारी। सीरत में एक वाक़या आता है कि ताइफ से लौटते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे जिनों के पास, गए थे या मिल गए थे, वो मिल गए थे, गए नहीं थे, वाक़ा मिल गए थे, मिले थे, उसका तो है ही है। और हमने बताया सूरह अक़ाफ़ में भी है और यहाँ भी सूरह जिन में भी है, ये वाक़या तो है। अब जिन्हों के मखलूक़ात क्या है तफसील कुछ नहीं पता है। शुजा साहब आए सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो जिन्हों को उन्होंने मुसख्खर कर रखा था, है कि नहीं, ताबे कर रखा था, ये सब चीज़ें हैं। अब उनकी सुलेमान अलैहिस्सलाम किस्से की बुनियाद पर हम जो है कहने लगे कि हमने भी मुसख्खर कर दिया है, और कुछ दुआएं हम पढ़ते हैं साहब, मुवक्किल हमारे पास हैं। और आपको मालूम है कि बहुत से उलमा ने कुरान मजीद को अमलियात का मजमूआ बना दिया है, हर सूरह पर कुछ न कुछ। सूरह इखलास में दो मुवक्किल हैं साहब, दो मुवक्किल सूरह इखलास पर है, और सूरह जिन में कितने मुवक्किल आप पूछिए मैं। तो मुवक्किलों को बना लिया है, झाड़ फूंक के ज़रिए निज़ाम चला रहे हैं दुनिया का निज़ाम चलाया जा रहा है। किसके ज़रिए, झाड़ फूंक के ज़रिए, मुवक्किल के ज़रिए। क्यों, हज़रत सुलेमान ने मंगा दिया था ना, क्या तख्त वहाँ से मंगा दिया था। तो ये सब इस तरह की बातें साहब कर रहे हैं, और ये सारी बातें दौरे ज़वाल की हैं। जब कौमें जो ज़वाल पजीर हो जाती हैं तो झाड़ फूक जिनों वगैरह के चक्कर में पड़ जाती हैं। ये 800 साल से है, हम जिनों को अपने कब्ज़े में कर रहे हैं, और दुनिया हमको अपने कब्ज़े में कर लिया है दुनिया ने। और वो दुनिया में खूब, हाँ इसी में रहो तुम जिनों से न निकलने पाओ, जिनों को मुसख्खर करते रहो तुम। तो हम जिनों को मुसख्खर कर रहे हैं, और वो पूरी कायनात को मुसख्खर किए, हमको मुसख्खर किए हुए। ये है सूरत हाल। चलिए साहब, हाँ यहूदी लोग भी झाड़ फूक, उनका फितना यही, उन्हीं का फितना है जो हमें चला आया है। वो जो है और बड़ा अक्लमंद भी है ना, बेवकूफ़ थोड़े हम लोग हैं ना। चलिए, ज़ालिक अल्लम यकुल वलिकुल्लिन दरजातुम मामिलू, हर एक के लिए क्या है, कुछ दर्जात हैं। जी वो भी जन्नती हैं, सूरह जिन में है, वो जन्नत में भी जाएंगे, दोज़ख में भी जाएंगे, दोनों किस्म के। आए जन्नत, अब ये सब बातें जो है ना, देखिए ये इसमें है मावा को, जैसे इसमें जो कहा है, देखिए इसमें जो है ना क्या है, मावा नारो मसवाकुम, आग तुम्हारा ठिकाना है। इसमें दोनों मुखातब हैं, ठीक है कि नहीं, आग में दोनों रहेंगे। अलबत्ता ये आगे जो आ रहा है थोड़ा सा, वलिकुल्लिन दरजात में मामिलू, हर एक के दर्जे होंगे, मिम्मा आमिलू, हर एक के लिए दर्जे। हर एक से मुराद कौन है जी, वलिकुल्लिन दरजात में आमिलू, मोमिन और काफिर हर एक के दर्जे होंगे। अब इसमें मोमिन को आप शामिल कर दो। हमारा रब्ब का बेगफ़र में, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से, उनके आमाल से बेखबर नहीं है, खबर रखता है। बिमा यामनून से मुराद मोमिन और काफिर दोनों होंगे नहीं। आगे चलिए, वो रब्बुकुल गनी ज़ुर्रहमा, तेरा रब बेनियाज है, ज़ुर्रहमा, इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तुमको यहाँ से बेदखल कर सकता है। अब यहाँ से जो है आम इंसानों के यहाँ खिताब हो गया, समझ लीजिए। आम इंसान से मुराद कौन, मोमिनीन नहीं है, मोमिनीन नहीं, मुशरिकीन हैं, उनके सरदारान हैं। गोया कि कहा जाए हर सरदार के लिए, जो रहनुमा इनके, हर सरदार के लिए दर्जात हैं। दर्जात मतलब अज़ाब में बुलंदियाँ, अज़ाब में
ऊंचा अजाब होगा। जितना बड़ा सरदार होगा उसी लिहाज से उसका अजाब उतना ही बड़ा होगा। वो रब्बुकल गनी ज़ुर्रहमा, तेरा रब क्या है? गनी है, ज़ुर्रहमा, ज़ुर्रहमा माने रहम वाला, वो बेनियाज है, इनके ईमान का मोहताज नहीं। ये रसूल पर ईमान लाए तभी वो मोहताज नहीं है, वो रहीम है। एक चीज़ और समझिए मौलाना, आपके लिए ताहिर साहब, ज़ुर्रहमा जब कुरान मजीद में आता है तो ये मुसलमानों के ज़िम्न में नहीं आता, समझ में, मुसलमान का रहीम आएगा, रहमत आएगा। ज़ुर्रहमा जहाँ भी आएगा कुरान मजीद में निकाल लीजिएगा, पस मंज़र में मुश्रिकीन होंगे, दुश्मनान इस्लाम होंगे, हमेशा दुश्मनान इस्लाम। अब फिर आगे बात देखिए, इन ऐसा युद्धिक्कुम, क्या मुसलमान से खिताब करेगा? ऐ मुसलमान तुमको चाह कर ले जाएगा, वयस्तख्लिफ़ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारी जगह दूसरों को तुम्हारी जगह जानशीन बनाएगा। ये मुश्रिकीन मोमिन से खिताब होगा? नहीं, ये तो धमकी दी जा रही है ज़बरदस्त ना। कमान शाक मिन ज़ुर्रियत कौम आखिर, कुरैश के सरदार से खिताब हो रहा है। ये सरदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिससे उनको धमकी दी जा रही है एक तरह से। इन्नमा तुअदुन लआत, बेशक वो चीज़ जिसकी तुम्हें धमकी दी जा रही है, लआत। इन्नमा तुअदुन माने वादा किया जा रहा है, आपने किया, वादा करना भी आता है और धमकी देना भी आता है। तो आपके लिहाज से तो वादा, हाँ, लेकिन अब जाहिर है कि अब आप देखिए जो मानते में मुजज़ीन, बेशक वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है आने वाला है, और बेशक वो चीज़ जिसकी तुम्हें धमकी दी जा रही है। किस चीज़ की धमकी दी जा रही है? अज़ाब की, वो आकर रहेगी। तो जाहिर है कि तुअदुन का खिताब किससे होगा? मोमिन से या मुश्रिकीन से? ये बात है। उमान तुम मुजज़ीन, और तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं थे। बताओ ये इसके ज़रिए खिताब मुसलमानों से होगा? नहीं हो सकता। ये सब के सब कौन है? मुश्रिकीन हैं। और आगे देखिए, क़ुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम, ऐ मेरे कौम के लोगों, अपनी जगह तुम काम करो और अपनी जगह मैं काम करूँगा। अब अला मकानतिकुम से मुसलमान होंगे, आप देख लीजिए, साफ साफ हो गया कि नहीं? ये कौन मुखातब है? सनादिद कुरैश हैं, उनसे कहा जा रहा है हम दावत दे रहे हैं, तुम मान नहीं रहा है। अकाबिर मुजरिमीन है, बिल्कुल तुम हमारी बातों को नहीं मान रहे, मत मानो, तुम काम करते रहो, हम भी काम करते रहे। फसौफ तालमून, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरत का अच्छा अंजाम किसके लिए, तुम्हारे लिए है या मुसलमानों के लिए। इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, देखो आ गया, इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।